ఇండిపెండెన్స్ మీద చాలా సినిమాలు వచ్చాయి, చాలా సిరీస్ వచ్చాయి, కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఒక కొత్తదనం చూపిస్తుంది. మనతో ఇక్కడ నెహ్రూ ఉన్నారు, నిఖిల్ అడ్వాణి అండ్ గాంధీజీ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అండ్ మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా. సో చూస్తున్నారు రియలిస్టిక్, ఇంకా చాలా ఒథెంటిక్గా తీశారు ఈ సిరీస్. సో ఇప్పుడు మనము వీళ్ళందరితో మాట్లాడదాం. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. Thank you. What I understood was real series, real something, and real Authenticity. authenticity. Yes. I love authenticity. Okay. Of course. So we'll start with निखिल जी. So बताइए, जो हिस्टोरिक और पीरियोडिक थिंग्स है, जो मतलब एडेप्टेशन है आपका, ऑथेंटिसिटी विद क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, फैंटास्टिक एंड स्पेक्टेकुलर वर्क, इसके पीछे कितना इन्वेस्टिगेशन गया, कितना रिसर्च गया, कितने साल लगे? आपने देखा पिकी शो? जी मैंने देखा. कितना? 2 4? नहीं, मैंने 3 ही देखा. 3 episodes. जी 3 एपिसोड. वेरी गुड. पर आपके पास आप 7 के 7 एपिसोड तो अभी आ गए होंगे ना? हाँ ऑफ कोर्स आ गए. मुझे देखना है, मैं जाके. तो कितना कितने साल लगा? 2 years of writing. ओके. रिसर्च राइटिंग जो है 2 साल लगा जी. 15 एपिसोड है बिकॉज वी वर गोइंग टू शूट ऑल द 15 एपिसोड्स टुगेदर. जी. तो अब टुमारो 7 एपिसोड्स विल कम, जो सीजन 1 के 7 एपिसोड्स है. और बुक इतनी दिलचस्प बुक है. द इवेंट्स और द कैरेक्टर्स जो है वो दे जस्ट जंप आउट ऑफ द पेज एंड दे मेक यू फील. व्हेन यू आर रीडिंग ओनली यू फील आइदर समटाइम्स यू फील वेरी सैड, समटाइम्स यू फील वेरी you feel elated when you know, even in spite of everything else, the moments which make you feel really emotional. तो अब हम डिसाइड करना था कि क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या ये रेलेवेंट नहीं है जो स्टोरी हम कहना चाहते हैं. For 2 years, it took us a complete 2 years. 2 years. And how much time did it take you to get all the characters together, the casting? About another year of prep. So, जो कास्टिंग का जो आप वो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कास्टिंग इज पार्ट ऑफ द प्रेप. तो मतलब 1 entire year ऑफ प्रेप, नॉट ओनली ऑफ कास्टिंग बट ब्रिंगिंग देम टुगेदर. उनका लुक, उनका वर्कशॉप, उनको फुटेज दिखाना, उनको स्पीचेस सुनाना, उनको स्क्रिप्ट के साथ बैठ के डिस्कस करना, स्क्रिप्ट को फिर से चेंज करना, क्योंकि समटाइम्स सिद्धांत हैड अ बेटर आइडिया देन व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्ट. जो गांधी और सरदार का जो ये था, उनको जिस तरह से वो लोग प्ले कर रहे थे, पहले मुझे लगा था कि मैं जब भी गांधी और सरदार बात करते हैं सिर्फ गुजराती में बात करेंगे, बिकॉज मेरा दिमाग में ये था कि दे बोथ वर फ्रॉम गुजरात, दे बोथ वुड हैव स्पोकन इन गुजराती टू ईच अदर, स्पेशली इन प्राइवेट. जब आपके सामने उनको बात करना है तो दे डोंट वांट यू टू नो, तो दे वुड स्पीक इन गुजराती. विद आरिफ, the fact Arif is such a incredible command on English and the way he speaks, I wanted, मुझे इंग्लिश चाहिए था, but at the same time मुझे alienate नहीं करना था audiences को. तो मुझे वो हिंदी भी I wanted it to sound as if it is still sounding as if it is elitist in English. Yes. So आरिफ का जिन्ना का जो हिंदी भी बात करना है is with an English twang, with an English distance. So वो सब जो है वो लगा एक साल लगा. तो हिस्ट्री आप सब में से किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? Everybody will point at me only. Yeah. Of course I know that. Literally after the shoot also, he would run on a treadmill also. He was walking on the treadmill and he'll be hearing some podcast, some history podcast all the time. History. Yeah, it's insane. Yeah, I want to acquire that love for history. So last कौन सा पॉडकास्ट सुना? हिस्ट्री मतलब कोई बुक सुन रहे थे आप या? विलियम डैलरिम्पल और अनीता आनंद पॉडकास्ट एम्पायर, which is on which जो Spotify पे है. क्या है सब? What is about this empire? Empire is about all the different empires of the world. So it started actually with the British Raj, the British Empire. It then goes into Ottoman, then it goes into Russian, it goes into the Chinese, it goes into Byzantine. Incredible. Whose is the most brutal chapter? The thing is, it's full of violence. Empires are built Did on you see his violence. face? Yeah. Like it's full of- I feel now he will stop. I feel it now he will stop. Violence. Yeah, that's I think he'll stop telling about freedom at midnight and he'll start about empire. Yeah. So That's both of insane. you, what do you discuss? जैसे बोल रहे थे गुजराती में, उसमें मतलब of course characters है. Personally आप दोनों क्या बात करते हो? नहीं personally मतलब off camera आपके topics क्या रहते हैं? मत बोलना ज़्यादा. मतलब एक्टिंग करना. हमारे हम थिएटर से एक दूसरे को जानते हैं बहुत सालों से, और बीच में एक ऐसा टाइम आया जब हम नहीं मिल पा रहे थे.
तो वो सारी पुरानी यादें 1947 1947 ही घुस गया वो 19 से सब वो जब हम दोनों एक साथ प्ले कर रहे थे गांधी के गोड से, जिसमें मैं गोड से बना था, ये मनन लाल पाहवा बने थे, तो वो सारी बातें उस टाइम के थिएटर के दोस्त, थिएटर की चर्चाएं, बेसिकली आओ बहन चुगली करें। तो चुगली में आरिफ जी को मिलाते हो या नहीं? मैं इन लोग से दूर रहता था क्योंकि I was not getting along with them anyway on screen. so I tried to avoid them. But You were in the Rajendra and I, character. we worked on a TV show many years ago. Yes. So he and I connected after many years on many the show. So it was good, but I mean, jokes apart, of course, we all got along very well, I think, Yeah. famously with each other. So that helped. कभी मदद करता है, कभी नहीं करता, because you know आपको सुर समझ आ जाती है कि एक्टर ऐसे बोलने वाला है, तब बोलने वाला है. जी. खासकर राजेश, द एक्टर हु प्लेज लियाकत, और माय सिस्टर फातिमा, तो उनके साथ बड़ा जल्दी तालमेल हो गया, बिकॉज सारे सीन उनके साथ थे. तो वो अच्छा रहता है. कभी मुझे पता है एग्जैक्टली वो कैसे रिएक्ट करेंगे, राजेश कब क्या बोलने वाला है. देन राजेश हैज अ फनीयर साइड लियाकत का, अगर आपने देखा है. जी जी. तो वो एक लाइक मैं उसको वो बिग मूस था आची में वैसा बोलता था कभी, यू नो, यू लाइक द बिग मूस, कि हाँ ओके व्हाट हैव यू टोल्ड मी, हाँ. देन उसको एक थोड़ी देर बाद समझ में आता था. तो वो क्या पर्सनल आपकी एक केमिस्ट्री होती है ना, तो आपको थोड़ा सा वो स्क्रीन पे असर करता है और आसान होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझ में आता है वो कैसे रिएक्ट करेगा. कुछ अगर इम्प्रोवाइज करना हो या कुछ डालना हो या निकालना हो, तो वो बड़ी आसानी होती है. तो व्हेन यू डू अ कैरेक्टर, लोग आपको बाहर भी कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर से रिलेट करते हैं. सो आपको नहीं लगता कि आपको बाहर भी थोड़ा पाकिस्तानी वाला फीलिंग आपके ऊपर ज्यादा है? नहीं, जिसने रावण किया उसको श्रीलंकन तो नहीं बोलते आप ना, तो Of course. हाँ, कई विलन, या अगर आप उसको विलन के तौर पे देखे, जैसे हिटलर के रोल बहुत एक्टर ने किए हैं, तो डिपेंड्स करता है आप किस तरह से उस कैरेक्टर को देखते हैं और कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं. जी. अगर इन अ गुड वे वो बैड समझते हैं तो अच्छा है, आई वुड से. यस. अभी गांधी जी, वी रियली लव्ड यू. थैंक यू सो मच. ऐसे लगा हम लोग जो बचपन से जो बचपन से गांधी जी के एक मतलब जो इमेज है, हम जब बुक्स खोलते हैं ऑल, एग्जैक्टली सेम ऐसे लगे गांधी जी आ गए. मुझे ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुन्ना भाई के गांधी जी से बहुत अच्छे लगे आप मुझे. वो भी बहुत गजब एक्टर हैं, ऑफ दिलीप प्रभावल के साथ. ऑफ कोर्स कंपैरिजन नहीं है, Sir, लेकिन no comparison, आपका but- जो सीरियसनेस, आपका जो पेपर देने का स्टाइल, जो बॉडी लैंग्वेज थी, इट वाज लाइक एक्सीलेंट. थैंक यू सो मच. तो व्हेन डूइंग दिस वन, कैसे आपके प्रोड्यूसर स्ट्रिक्ट है, अच्छे हैं? बहुत गजब है, यानी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब या बोल दे. डोंट बी इन द गांधी कैरेक्टर. का खाना मत देना इनको, बाकी सब दे दे. ऐसे है ये प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर director. इतनी कंफर्ट जोन दे देते हैं. जी. सो यानी शूटिंग का माहौल बहुत ही कंफर्टेबल था, और एक एक्टर को यानी इतना आप में विश्वास रखना किसी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के उन्हें अगर सच लगता है तो उसे इनकॉर्पोरेट करना. यानी एक एक्टर हमेशा यानी एक कंफर्ट जोन फील करता है. जी. सो दैट इज व्हाट. यस. एंड फिर प्लेइंग एक grow होता है. एंड Dynamic. या डायनामिक, dynamic. यंग एंड डायनामिक नेहरू जी. मेरे को लगता है आप बाहर भी ऐसे फूल लगा के फिर रहे होंगे. हाँ, जब से शो खत्म हुआ मैं वो रोज एक गुलाब मैंने आपको लगा के नीचे देखा था, एक वो गुलाब फूल में लगा कर भी घूमते हैं और देते भी हैं लोग. अच्छा देते भी है. लेटेस्ट किसको दिया आपने? जब इंटरव्यू सेशन चल रहा था, एक को जब भी आखिरी जब दिन खत्म होता है ना, तो लास्ट में हमेशा मैं किसी को आपको मिल जाएगा. आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. आई वाज विशिंग दैट. सर, आपने तो काफ़ी इंटेंस और ऐसे रोल्स किए हैं जैसे आप बोले कि आप थिएटर से हो. इट्स समथिंग लाइक स्क्रिप्ट्स आर कम्स नेचुरली टू यू, एक्टिंग कम्स नेचुरली टू यू. सो व्हेन दिस रोल वाज अप्रोच टू यू, तो फर्स्ट आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल दिया गया या कुछ और दिया गया, फिर ये स्टार्टिंग से? सरदार पटेल ही दिया गया, और सरदार पटेल ही दिया. इन्होंने एक गो में देख के इसको अप्रूव किया, मेरा काम हो गया. So was casting very easy for you? No, it's actually, I mean, most of the hard work and the heavy lifting gets done by Kavish, जो हमारा casting director जी है. जी जी. So he breaks down the script, वो पढ़ता है. और I think जब मैं long form करता हूँ, जब मैं OTT करता हूँ, my main criteria है कि मुझे यार, if I'm doing a feature film, then मुझे there is a different type of casting जहाँ पे you have to bother about the Friday को who's going to be able to bring in the audience into the theater, right? You have to bother about those very commercial का जो एक commercial रिकवरी के बारे में आपको सोचना पड़ता है जब उस टाइप पे कास्टिंग कर रहे हैं.
But when I'm doing long form and OTT, I'm not bothered. I'm more bothered about कि will Siddhant be able to physically work as Nehru, and then will he be able to perform with these incredible actors? Similarly, vice versa. Also with Chirag and तो Kavish is the one who basically मुझे बहुत गाइड करता है कि ये करते should we do this, इसको ऐसा करते हैं. लाइक मलिश्का जो who's playing सरोजनी नायडू, मैं लाइफ में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि आई वुड कास्ट मलिश्का हुआ है जो मैंने प्रमोशन के टाइम पे उसे मिला है. शी इज दिस पर्सन, वो ये मुंबई की रानी, एंड सडनली उसने मुझे एक ये दिखाया, ऑडिशन दिखाया, माय गॉड लेट्स गो, एंड एवरीबडी जंप. जब मैंने ये मलिश्का के बारे में सोनी में भी बात किया था, दे सेड can she act? He said, yeah, that becomes the only criteria actually. Can they act? बोलते हैं ना, एक्टर्स कितने भी अच्छे हों लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उससे एक्टिंग करवाना भी एक आर्ट है. तो व्हाट गोज इनटू योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग दैट? नहीं करवा सकता. नहीं, आई एम अ बैड एक्टर माय सेल्फ. तो ओबामा हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं उसका बुक पढ़ रहा था जी, Barack Obama said that the reason I am so good, or the reason people think I am so good, is because I surround myself with people who are better than me. तो मैं वही करता हूँ. My technicians and my actors are more competent in delivering what I want them to deliver than I can ever think about. yes. मैं really कुछ direct नहीं करता. ये निखिल सर का बड़प्पन है. Yeah, he's No, just we have seen his best work, so I think Yeah. this is I truly believe that even though he's great, but this is beyond best. This world that has come together, I truly believe that. And ever since, there were times during the shoot, I kept saying this to myself, that this is such a gift of a director that we have. I really mean that. और राइट मोमेंट पर कहाँ, यानी सर विल से समथिंग अबाउट द सीन एंड यू फील दैट हे यस, एंड वो एक लाइन की वजह से वो सीन में अलग मैजिक होता है. ये सब how do you get that magic? क्या है सीक्रेट? He plays a game. They are making an interview interesting. नहीं, कुछ तो मैजिक है, बिकॉज वो ह्यूमिलिटी है सर की, ये जो कह रहे हैं बाकी सब जो. निखिल जी, 10 years back, 15 years back, did you ever think that you will do a project like this, which is so serious, so authentic, so realistic, with historic I don't elements think in it? last night also जब हम लोग ने finally एक rap party किया, when we finished shooting, and अलग the thing is कि राजेंद्र का rap अलग से हुआ, चिराग का रैप के लिए मैं था भी नहीं, because I had to come back over here. आरिफ का रैप first, you were the first person to rap amongst the four of them. And सिद्धांत का अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे सेकंड सीजन का कुछ थोड़ा बहुत शूट अभी भी बाकी है. बट आई फेल्ट कि आई वांटेड टू गेट ऑल द, मतलब 400 लोग जिन्होंने इस पे काम किया है. एक when you are doing a film or you are doing a project like this, आप 400 लोग को कहते हो कि ये जो है ये खाई है, हम लोग सब लेट्स जंप, और पैराशूट खुल जाएगा, राइट. सो येस्टरडे आई जस्ट फेल्ट कि ओके, यू नो, येस्टरडे ऐसा यहाँ तक पहुँच गए. अभी तो मतलब कल रिलीज होगी उसको एक अलग बैटल, द बैटल ऑफ द व्हाट द ऑडियंस फील्स एक्सेट्रा, जो हमारा विजन है, जो हमने जो इंटरप्रेट किया है, वो उनको पसंद आएगा कि नहीं, वो अलग बैटल है. पर यहाँ तक पहुँचना, ये स्टोरी को यहाँ तक पहुँच के दिखाना हमारे लिए बहुत ही इज अ मोमेंट ऑफ बिग प्राइड. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. एवरीबडी, I can see that in every single person. Because we have always seen, like in the past I'm talking about, seen you like doing all the love kind of movies, and suddenly a shift into this, then a producer, then actually MA Entertainment. This is something, a huge transformation for you and your life also. Yeah, it is. Yeah. So how did you get that transformation? I don't know. Fate decide. I don't have a plan. I never have a plan. I made so many films that did not work, and I had no work, so I said I have to start my own production company. I was writing a love story which nobody wanted to do, so I said okay, let me make a film about. Or my driver said Osama bin Laden को वो लोग ने पिकअप किया, हम लोग दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं पिकअप कर सकते? I wrote a script. Oh, that's how the idea came from. Yeah. Driver का conversation. Yeah. He said why are we not doing that? I said, Nice. yeah, great script, let's make it.
I went and did that, and you know, I had a house in Alibag. Nobody wanted to fund that. I sold that house and I made the film. The film became a cult, Yeah. like classic. I meet people. I met a very, very huge star from Andhra, Mr. Allu Arjun, and he said, I choose the sound of D-Day also. I make my sound designer and my sound recordist here because what you did in this thing. So I don't know. I have no plan. I just follow. Even Freedom at Midnight, Sony Liv came to me and said, would you like to make Freedom at Midnight? I started laughing. I said, rights तो कभी मिलेगा नहीं. This हमारे पास है. I said, okay, चलो बनाते हैं. So fate is designing everything for you. Yeah, always. Yeah. So, does fate be at the right have- place at the right time. Yes. So does fate have this thing that you'll do something in Telugu? No way. No. It has taken me so long to learn Hindi. And I feel the biggest drawback that most directors a director can have is not to think in the language that they are working in. As an actor, you have to think in the language. These guys are so brilliant, brilliant they are because they know the language. So if I turn around, मैं अगर बोलता हूँ कि ये सीन को यार ये पूरा ये करते change प्रोड्यूस भी करना नहीं चाहते आप? मैं डायलॉग नहीं यूज करना चाहता हूँ, आप बोलो जो भी बोलना है. ये डायलॉग रबिश है, इसको एसेंस ये एसेंस पकड़ के मुझे बताओ क्या करेंगे. फट ऑल ऑफ देम कैन डू. दैट्स द पावर ऑफ वर्किंग विद गुड एक्टर्स. वेयर अ डायरेक्टर, आपको डर नहीं लगता है कि आप सेट पे पहुंचोगे, आप बोलते हो और आप इम्प्रोवाइज करने के लिए एक्टर्स को बोलोगे. इट सेट्स यू फ्री. Sets you free. So Siddhant, what were the fun moments? Tell us on location. कुछ You know, मस्ती तो की होगी आप लोगों ने? honestly, fun moments were also brought in by him because the story is so painful, as you know, it's the most important but the most painful chapter of history also. But while shooting, I think he used to come up with these one-liners or some little nuances every time we got a chance in a breathing space in a scene. Sardar Patel and Nehru, because in that chaos they kept each other lifted also, and that is something I didn't understand. That is something he brought in, and it was just embraced by the two of us. Yes. And it just added such a beautiful layer to the entire equation. It's not about just two people working, it's the entire story that they carry. So anyways, एक बहुत खूबसूरत सी layer आ गई हमारे equation में, story में. And he's actually ये हंसी है शो की. बीच में जहाँ भी टाइम, जहाँ भी स्कोप मिल रहा है, ही पता नहीं क्या करते हैं ये, इनके अंदर क्या गुदगुदी है वो. क्या है सर? I don't know क्या है. ऐसा हो जाता I don't know. नहीं, अपने क्या आप ही है आ फन जाता है. मोमेंट्स क्या है? देखिए ऑन स्क्रीन तो मुझे screen तो है ही. ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली हैव सम सीरियसनेस ऑन स्क्रीन, बट ऑफ स्क्रीन क्या है वो फन थिंग? इनको और राजेश का तुमने जो जोक्स एक उस पे एक स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए. जी. ये और ये राजेश जो एक्टर लियाकत, वो एक कोई कॉन्वर्सेशन को लेके उसमें स्पिन ऑफ बनाते थे. कमाल है यार. और वो मतलब वो फिर कुछ घंटे चलता था, पूरी शिफ्ट खत्म होते तक वो चलता था इनका. वो किसी भी एक मुद्दे को लेके, जैसे अभी कुछ भी है, रिकॉर्डिस्ट बैठा है उसको लेके, या उसको लिंक करेंगे कोई एक सीरियल से, एक फिल्म से, फिर उससे कुछ बात, एक लाइन जोड़ेंगे. याद है तुम कितना करते राजेश लोग? तो ये बड़े मजाकी है. लेकिन also the- आज तो काफी चुपचाप है सर. अरे नहीं आज फॉर्मल है ना, क्या हो कपड़े गया वपड़े सर? पहन के बहुत सीरियसली. नहीं सर, अब उनको बोला गया है कि सीरियस रहो. कल रिलीज हो रहा है ना इसलिए. नहीं मतलब अच्छे. आज टेंशन में है थोड़ा. आज टेंशन में है. जूस मंगाओ सर आप. नहीं कुछ नहीं. ठीक है. नहीं, शूट करके आए रात को यार, सोए नहीं. 4 बजे शूट करके 4 बजे शूट कर रहे थे कहीं, उसके बाद आए. Great. Nice. So finally, Freedom at Midnight, a very spectacular project of all of you, and I'm sure audience will also love it. तो I want to say like आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे बोलेंगे आप ऑडियंस को? फ्रीडम एट मिडनाइट 15 नवंबर, मतलब कल से, आज रात से शुरू हो जाएगा. आप इसको प्लीज देखें और अप्रिशिएट करें. प्लीज वॉच एंड अप्रिशिएट. फ्रीडम एट मिडनाइट ज़रूर देखें. आप तो देखें ही देखें, आप अपने बच्चों को, छोटे जो यंगर जनरेशन है उनको ये ज़रूर दिखाएं. उनके लिए आई ओपनर होगा. जो आज़ादी हमने बहुत सस्ते में मान ली है, हल्के में मान ली है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ का तैयार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है. सो फ्रीडम एट मिडनाइट 15 नवंबर को आ रहा. फुल फैमिली को देखना, सबको दिखाना, भूलना ना को. Long years ago, I made a tryst with destiny, and I think मेरा भी सपना पूरा हो रहा है, and I think it's one of the most beautiful shows that is coming out.
and it's very authentic, and the emotions are really pure, and the facts are checked. So please watch it. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, లవ్లీ టాకింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో చూశారు కదా ఎంత ఇష్టంతో ఈ క్యారెక్టర్లో వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు. సో ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ తప్పకుండా చూడండి.